إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ گھریلو زندگی کیسی گزاری جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، گھر اللہ کا انعام ہوا کرتا ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کی۔ 14ویں پارے میں سورہ نحل پڑھ کے دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ اس سورت میں کیا ہے۔ نعمتوں کا سلسلہ بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے گھر کو بھی بطور نعمت کے پیش کیا۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو رہنے کا
आराम करने का, सुकून हासिल करने का जरिया बनाया। गोया के घर अल्लाह का तोहफा है। खाह आप खास घर पे रहते हो या किराए के घर पे रहते हो, अगर आपको एक छत मुयस्सर है तो ये छत अल्लाह की बड़ी नेमत हुआ करती है। ये छत अल्लाह की बड़ी नेमत हुआ करती है। और घर एक तरबियत गाह है, घर एक मदरसा है, घर वो मकाम है जहां इंसान सुकून हासिल करता है, जहां अपने मसाइल का हल पाता है, जहां जिंदगी की उलझनों से दूर सुकून और इत्मीनान वाली जिंदगी अगर इंसान को मुयस्सर होती है तो वो घर का जो है मकाम है। तो इसलिए मेरे और आपकी ये जिम्मेदारी है, अल्लाह तबारक व तआला ने जो छत मुझे और आपको अता किया, जैसी भी वो छत हो, वो छत अल्लाह का इनाम है, उसकी कदर करने वाले हम बन जाएं। उसके जरिए से हम इस दुनियावी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाने और उखरवी जिंदगी में कामयाबी की तरफ आगे बढ़ने के लिए उस घर को एक जरिया बनाएं। और याद रखिएगा कि बहैसियत मुसलमान मेरे और आपकी ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि जहां बाहर हम बड़े निकोकार नजर आते, इबादत गुजार नजर आने की कोशिश करते, मुत्तकी और पारसा मेरे और आपकी पहचान है, गुनाहों से दूर रहने की कोशिश करते, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि घर का माहौल पाको साफ हो, घर के अफराद दीनदार हो, घर का माहौल कुछ ऐसा हो कि दीन की जानिब, दीनी तालीमात को अपनाने की जानिब आगे बढ़ने का हौसला हमें मिलता हो। ऐसा माहौल घर का बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा घर सुकून का गहवारा बन जाए तो उसके लिए जरूरी है कि घर के हर हिस्से में दीनदारी नजर आए, अहले खाना और घर के अफराद दीन से करीब हो जाएं और दीन से जुड़ जाएं। अल्लाह की कसम, दीन से जुड़ जाएं तभी वो घर सुकून का गहवारा हो सकता है, वरना आजमाइशों, आफतों और मुसीबतों का गहवारा बन जाएगा वो घर जिस घर में दीनदारी से कोई वाबस्ता ना हो, जिस घर के अफराद का दीनदारी से कोई ताल्लुक ना हो। तो इसलिए दोस्तों, हजरात व खवातीन, इस बात की कोशिश कीजिएगा, सबसे पहले अपने घर का जायजा लीजिएगा। और घर का जायजा लेना चाहते हैं तो हर इंसान को सबसे पहले अपनी जात और अपनी शख्सियत का जो है जायजा लेना चाहिए कि घर के हालात कैसे हैं, घर में आपका किरदार कैसा है, घर में आपका उठना बैठना कैसा है, घर में आप गुफ्तगू करते हैं तो तर्ज़े गुफ्तगू कैसा है, घर में आप मुआमला करते हैं तो तर्ज़े मुआमला कैसा है, घर में आप शब रोज बिताते हैं तो उन घड़ियों में आप अल्लाह की नाफरमानी करते हैं या अल्लाह की मर्जी पे आप जो है आगे जिंदगी को बढ़ा रहे हैं। तो इस सिलसिले में हर एक को अपना जायजा लेना चाहिए कि खुद का भी हम जायजा लें और अहले खाना का भी जायजा लें। जहां जहां कोताही, कमजोरी, गफलत, सुस्ती, लापरवाही, बेदीनी नजर आए, अल्लाह की खातिर उसे दूर करने की कोशिश कीजिएगा। शुरुआत अपने दिल से कीजिएगा, शुरुआत अपनी शख्सियत से कीजिएगा और उसके बाद जो सबसे करीब है आपके, वाज़िर अशीरतकल अक़रबीन, ये जब अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत करीमा नाजिल किया, जबकि इससे पहले 3 साल तक अल्लाह के नबी छुप छुप कर लोगों को इस्लाम का पैगाम सुनाया करते थे, दावत दीन आप दिया करते थे। जब बबांगे दोहल बुलंद आवाज से दीन की दावत पेश करने की बात आई तो अल्लाह ताला ने कहा, ऐ नबी, सबसे पहले आप अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। आपका डराना, समझाना और फिक्र करना ये घर से शुरुआत होनी चाहिए। तो हमारे नबी ने हमारे लिए एक बेहतरीन उसवा पेश किया, अपने घर वालों को समझाया, अपने घर वालों की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिक्र की। तो उसके लिए जरूरी है दोस्तों कि जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। आज हम देखते हैं घर के जो सरपरस्त है ना, बिगाड़ वहीं से शुरू होता है। अगर सरपरस्तों और माँ बाप की जबान में अगर सच्चाई ना हो तो उस घर में पलने वाले बच्चों और नौजवानों से हम ये कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो जबान में सच्चाई को ले आएंगे। अगर घर के सरपरस्त और वालिदैन और नमाज के पाबंद ना हो, उन बच्चों से हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं वो नमाजों के पाबंद होंगे। तो गोया के शुरुआत
घर के जो सरपरस्त और जिम्मेदार अहबाब हैं उनसे शुरुआत होनी चाहिए। जिम्मेदारी का एहसास जो है पैदा कीजिएगा। याद रखिएगा, अगर आप सरपरस्त हैं, अगर आप बुजुर्ग हैं, अगर आप मां बाप के उस अजीम मकाम पे फाइज हैं, तो कल क़ियामत के दिन हशर की अदालत में अल्लाह के पास मुझे और आपको जवाब देना होगा। इस जवाबदही के एहसास के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। और अल्लाह के नबी ने कितनी प्यारी तालीम दी, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिह, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में जरूर पूछा जाएगा। यहां शायद हम लोगों को धोखा दे दें, लेकिन अल्लाह को हम धोखा नहीं दे सकते हैं दोस्तों। हशर के मैदान में हमारा बेड़ा पार नहीं हो सकता अगर हम खियानत करने वाले हों, अगर बददीन हों, बदमिजाज हों, मुगफ्फल हों, लापरवाह हों, कोताह हों। याद रखिएगा, कल क़ियामत के दिन हमारा बेड़ा पार नहीं हो सकता है। इसीलिए अगर हमारे अंदर वो जज्बा पैदा हो जाए ना, अल्लाह की कसम घर का माहौल बदलेगा, घर के अंदर इनकिलाब बपा होगा। इनकिलाब बपा करने वाली शख्सियत आप हैं, घर के आप रोल मॉडल हैं। आप गोया के घर में अगर आप कुछ टर्निंग पॉइंट लाना चाहते हैं तो घर के सरपरस्तों में बदलाव लाना होगा। घर के जो सरपरस्त और बड़े अहबाब हैं, जिन्हें हम कभी वालिदैन से ताबीर करते हैं और कभी वली से हम ताबीर करते हैं, तो ऐसे लोगों को चाहिए अपनी जिम्मेदारी को पहचाने और अपनी जिम्मेदारी का एहसास लिए जिंदगी बसर करें। याद रखिएगा, घर का कोई फर्द भटकता है और गलत रास्ते पे जाता है, अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे, आप आंखें बंद करके क्यों जिंदगी बसर कर रहे थे? मालूम था ना आपको, फिर भी लाड़ प्यार समझ लिया आपने कि रोकने से शायद बच्चा आपका नाराज हो जाए। ये ना समझा आपने कि आपकी इस लापरवाही से आपके बच्चे का फ्यूचर तबाह बर्बाद हो रहा है और उसकी आखिरत बिगड़ रही है और अल्लाह के पास आपको जवाब देना है। इसका एहसास हम लोगों के दिलों में नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए जवाबदेही का एहसास अपने अंदर पैदा कीजिएगा, तभी हम घर के हालात को बदल सकते हैं और घर को दीनदार बना सकते हैं। और एक दूसरे के हक में खैर का होना चाहिए। खैर खाह का मतलब जानते हैं कि घर का हर फर्द दूसरे के हक में खैर खाह बन जाए, भलाई चाहने वाला बन जाए। अगर मेरे घर का कोई फर्द बिगड़ रहा है ना, उस बिगाड़ को मैं महसूस करूं। अगर वो मुसीबत में मुब्तला है, उस मुसीबत को मैं महसूस करूं। अगर वो गलत रास्ते पे जा रहा है, उस गुमराही को मैं अपने सर लूं और उसे जो है उसकी इस्लाह की जो है फिक्र करूं। और हर सरपरस्त मां बाप को, गौर से सुनिएगा, हर सरपरस्त और मां बाप को फिक्रमंद होना चाहिए, दर्दमंद होना चाहिए, खैरख्वाह होना चाहिए। यही वो खैरख्वाही है, यही वो फिक्रमंदी है, यही वो दर्दमंदी है जो घर के माहौल को निखारती है, जो घर के माहौल को संवारती है। हम खुद गर्ज बने बैठे हैं दोस्तों, हम खुद गर्ज बने बैठे हैं। हमने नमाज की पाबंदी कर ली ना, मुतमईन हो जाते, मैं तो ठीक हूं, मैं तो अच्छा हूं, मैं तो सच्चा हूं, मैं तो कामिल हूं, मैं तो मुसलमान हूं। अरे हमें एहसास जो असल होना चाहिए कि घर के वो अफराद जो दीन से दूर और शरीयत की तालीमात से कोसों दूर नजर आते हैं, उस सिलसिले में आपने क्या फिक्र की? उस सिलसिले में आपने क्या कदम आगे बढ़ाया? क्या कभी आपने बेनमाजी बच्चे को समझाने की कोशिश की? क्या कभी आपने बेनमाजी बीवी को सही राह पे लाने की कोशिश की? क्या आपने बेनमाजी शोहर को अल्लाह की बंदियों के नमाज की तरफ ले आने के सिलसिले में कोई कदम आगे बढ़ाया? कहा कि नहीं दोस्तों, हम खुद गर्ज बने हुए हैं और इस खुद गर्जी का हम एतराफ नहीं करते हैं, हम सेल्फिश हैं। और आज के इस दौर में तो हर इंसान सिर्फ अपना जो है भला चाहता है और अपनी जात पे तवज्जो देता है। दूसरे जैसे भी जाएं, कभी कभार कुछ फिक्र कर लिया तो ऐसा नहीं है। जिंदगी के एक एक पहलू पर हमारी नजर होनी चाहिए। इबादात में कैसे हैं, अखलाकियात में कैसे हैं, अकाइद में कैसे हैं, मुआमलात में कैसे हैं, उनके दोस्तों अहबाब कैसे हैं, उनके एक्टिविटीज कैसे हैं, उनके नशातात कैसे हैं, हर एक पे आपकी तवज्जो। कभी इबादात में बच्चे बड़े पाबंद नजर आते, लेकिन दोस्तों अहबाब के मामले में बड़े कमजोर नजर आते। कभी दोस्तों अहबाब बड़े अच्छे नजर आते जो सोशल सर्विस में हमेशा आगे रहते, और लेकिन कभी एक नमाज की भी तौफीक नहीं मिलती। बाप मुतमईन हो जाते हैं, मेरा बच्चा लोगों की खिदमत कर रहा
रहा है और इस बात को भूल जाते हैं अल्लाह को नाराज कर रहा है आपका बच्चा, आपकी बच्ची अल्लाह को नाराज कर रही है। नमाजों से गफलत ये अल्लाह की नाराजगी का बाइस है और आपने इसे बीमारी नहीं समझा, आपने इसे कमजोरी नहीं समझा, आपने इसे एक मर्ज नहीं समझा। इस मर्ज की दवा कैसे आप कर सकते हैं दोस्तों? इसीलिए खैर खाह बनिएगा। खैर खाही का ताल्लुक आपकी जात के साथ खास नहीं है, बल्कि आप अपनी जात पे तवज्जो देने के साथ साथ घर के हर फर्द पे तवज्जो दीजिए और घर में ताउन का माहौल भी होना चाहिए, तभी घर दीनदार बनेगा। याद रखिए, आज ताउन का माहौल नहीं है दोस्तों, माफ कीजिएगा। बहुत सारे घराने ऐसे हैं, कुरान मजीद में अल्लाह ने जो कहा ना, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह के सिलसिले में हम एक दूसरे का ताउन करते, गुनाह के सिलसिले में हम एक दूसरे का ताउन करते, और जब नेकी की बात आती है ना, हम आंखें बंद कर लेते हैं, हम नजरअंदाज कर देते हैं, हम वहां ढील देते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। ताउन हमारा खैर के मामले में, भलाई के सिलसिले में हो। घर का कोई फर्द अगर आगे बढ़ना चाहता है दीनी नाहिये से, पूरा सपोर्ट कीजिएगा, उसकी हिम्मत अफजाई कीजिएगा। घर की खातून अगर दीनी प्रोग्राम में शरीक होना चाहती है, वो खैर है, उसे आगे बढ़ाइए, ताकि अगर औरत के अंदर दीनदारी आ जाए, अल्लाह की कसम घर का पूरा माहौल बदल जाएगा, घर का पूरा माहौल सुधर जाएगा। तो अगर किसी के अंदर खैर देखे ना, तो वहां पर शैतान आड़ में आता है और कुछ ऐसे शुकूक पेश करता है और आपके जहन में ऐसे वसवसे डालता है कि अगर आपने उनको इजाजत दे दी तो ये नुकसान होगा। कहा कि नहीं, कि ये शैतान की मक्कारी है, खैर पर बुराई का लिबास पहनाना और बुराई पर नेकी का लिबास पहनाना, ये शैतान की मक्कारी है दोस्तों। इसीलिए ताउन कीजिएगा। और जब देखते हैं कि आपके घर वालों में कोई शख्स अगर बिगड़ रहा है, वो दीनदारी उसमें अगर नजर नहीं आ रही है, दीनी रंग अगर उसमें नहीं देख रहे हैं आप, इजहार कीजिए, उसका इजहार कीजिएगा। हम इजहार नहीं करते, हम इजहार का भी एक तरीका होता है, क्योंकि अक्सर लोगों को अपनी इज्जत बड़ी प्यारी होती है। सब लोगों के सामने अगर बच्चे को डांट दिया ना आपने, तो बच्चा कभी अपनी हालत को नहीं बदलेगा। याद रखिए, इसे साइकोलॉजी कहते हैं, नफ्सियात कहते हैं। अगर आप किसी को सही राह पे लाना चाहते हैं ना, तन्हाई में समझाइए, अपने दर्द को उसके सामने रखिए। आपके बच्चे आपके बारे में महसूस करें, मेरे अब्बू मेरी आखिरत चाहते हैं, मेरे अब्बू मेरा फ्यूचर चाहते हैं। आप अगर डांटते भी हैं, आपकी डांट में ऐसी हमदर्दी हो और ऐसी फिक्र और तड़प हो कि बच्चा उस डांट में अपने फ्यूचर को तलाश करे, बच्चा उस डांट में अपने रोशन फ्यूचर को तलाश करे। ये जरूरी है दोस्तों, वरना हम क्या करते हैं कि भरी मजलिस में, शादी ब्याह के मौके पर, दीगर प्रोग्राम में अगर बच्चे ने कभी गलती की ना, सबके सामने अपने बच्चे को हम जलील कर देते। नुकसान जानते हैं क्या होता है? सबसे बढ़कर बाप और बच्चे के दरमियान जुदाई हो जाती है। वहां पर बेटा समझता है कि नाऊजुबिल्लाह सुम्मा नाऊजुबिल्लाह, इस कायनात का सबसे बड़ा दुश्मन तो मेरा बाप है। कहा कि नहीं दोस्तों, और मैं खासकर बच्चों से गुजारिश करता हूं, अगर मां बाप डांटते भी हैं ना आपको, वो आपके फायदे के लिए है, वो आपके मुस्तकबिल के लिए है, वो आपकी बेहतरी के लिए है, वो आपके सुधरने के लिए है। मां की डांट और बाप की डांट में अपने फ्यूचर को तलाश कीजिएगा और अपने मां बाप को कभी नाराज मत कीजिएगा। उम्र का तकाजा होता है कि कभी कभार मां बाप और सरपरस्त उम्र के ऐसे मरहले में होते हैं कि कभी मामूली बात पे भी डांट देते हैं। मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि अपने खून को, जिसके अंदर एक जोश है, जिसके अंदर एक वलवला है, आप नहीं समझते हैं कि किसके साथ आप कैसी गुफ्तगू कर रहे हैं, किसके दिल को आप ठेस पहुंचा रहे हैं, किसके साथ आप कैसे मुखातब हो रहे हैं। अल्लाह की पनाह। तो इसीलिए नौजवानों और बच्चों, याद रखो, अपने मां बाप को कभी रुसवा ना करना, अपने मां बाप को कभी दुख ना पहुंचाना। अगर मां बाप ने कभी डांटा भी ना, ये समझना अल्लाह की खातिर ये मां बाप मेरी फिक्र कर रहे हैं। ऐ अल्लाह तेरा करम है, ऐ अल्लाह तेरा करम है, तूने मुझे ऐसे मां बाप अता किए जो मेरी फिक्र करते हैं, जो मेरी इस्लाह की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप उन लोगों से पूछिए, बाप का साया किसे कहते हैं, मां की ममता और मां का प्यार किसे कहते हैं। उन लोगों से पूछिए जो मां की ममता से महरूम है, बाप के साये से महरूम है। नौजवानों,
आज घर का माहौल बहुत बिगड़ रहा है, इस माने में कि बजाहिर अगर घर के सरपरस्तों ने, मां बाप ने नमाज की पाबंदी कर ली और बच्चे एक तरफ नमाज की पाबंदी अगर उन्होंने कर ली, समझ लेते हैं कि हमने अपना फरीज अदा कर दिया। कहा कि नहीं, अपने मामलात को देखिए, अपने अंदरून जो घर का अंदरून माहौल है ना, उस पर नजर रखिएगा। वहां कितने फासिले आपको नजर आएंगे, कितनी दूरियां आपको नजर आएंगी। उन फासिलों को मिटाने की कोशिश कीजिए, उन दूरियों को मिटाने की कोशिश कीजिए। आज घर ऐसा बना हुआ है दोस्तों, जो मोहब्बत का संगम होना चाहिए, आज नफरत का जो है संगम हमें नजर आता है। घर के अफराद बजाहिर एक दूसरे से मुस्कुरा के मिल लेते हैं, और लेकिन घर के अफराद खुद ऐसे होते हैं, जैसे ही वो अपने रूम में जाते हैं ना, तो उसकी गीबत करना शुरू कर लेते हैं, उसकी पीठ पीछे बुराई बयान करना शुरू कर लेते हैं। क्यों? हमारे दिल साफ नहीं है। जब अपने घर वालों के बारे में हमारे दिल साफ ना हो, तो बाहर के लोगों के साथ हमारे दिल का क्या हाल होगा दोस्तों। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि घर का माहौल हमारा पहले दीनदार हो, और अपने दिलों को पाक व साफ करें। ये दिलों को पाक व साफ करने का मौका है, और हर एक को दूसरे के सामने अपनी खैर खाही जताने का वक्त है ये। क्योंकि आज सोशल मीडिया ने हम सबके दिलों में दूरियां पैदा कर दी हैं। घर का माहौल कुछ ऐसा ही है ना, यहां पर जो बुजुर्ग अहबाब हैं, आप उनसे कभी पूछकर देखिएगा कि उनका बचपन कितना बेहतरीन था, कैसे घर वाले एक दूसरे से करीब हुआ करते थे, एक दूसरे से मोहब्बत का जो इजहार किया करते थे, और एक दूसरे से अपने रिश्तेदारों के बारे में बातें और गुफ्तगू किया करते थे। आज हमारा कुछ हाल ऐसा है कि हमें सोशल मीडिया के लिए काफी देर जो है देना तो गवारा लगता है। अगर माँ बाप ने कुछ क्या तलब कर लिया, 10 मिनट 15 मिनट, हमारे बच्चे वो 15 मिनट देने के लिए भी तैयार नहीं होते। अगर दोस्त का कॉल आए तो घर से बाहर फौरी तौर पर रेडी होकर निकलने वाले हमारे नौजवान, लेकिन जब घर के अफराद अगर तलब करते हैं थोड़ी देर बैठकर आपस में तबादला ख्याल करने की जो दावत देते हैं, तो हमारे नौजवान तैयार नहीं होते। जब तक दोस्तों मिल ना बैठे, उस वक्त तक हमारी कमजोरियां सामने नहीं आएंगी, एक दूसरे की हमदर्दी सामने नहीं आएगी। मिल बैठने की कोशिश कीजिए, आपको एहसास होगा आपके सरपरस्त कितने दर्दमंद हैं, आपके बाप कितने फिक्रमंद हैं, और आपकी मां के अंदर कितनी तड़प मौजूद है। तो मिल बैठने से ये एहसास होता है। तो लिहाजा हम गुजारिश करते हैं कि अपने रिश्तों पर भी नजर रखा करें। जहां फासिले हैं उन फासिलों को मिटाने की कोशिश कीजिएगा, एक दूसरे से करीब होने की कोशिश कीजिएगा। और सोशल मीडिया ने, अल्लाह रहम फरमाए, है दिल के लिए मौत नशीनों की हुकूमत, एहसास मुरुवत को कुचल देते हैं आलात। इन आलात ने हमारे दिलों से इंसानियत को खत्म कर दिया, हमदर्दी को खत्म कर दिया, रहमदिली को खत्म कर दिया, खैरकाही को खत्म कर दिया, फिक्रमंदी को खत्म कर दिया। नतीजे में घर के अफराद एक रहने के बावजूद अजनबी नजर आते हैं, एक साथ रहने के बावजूद घर के अफराद अजनबी नजर आते हैं। अगर घर के अफराद अजनबी होना, तो फिर इस्लाह कहां से होगी, इस्लाह कहां से होगी, और एक दूसरे की बुराई को कैसे पहचान सकते हैं, और एक दूसरे की फिक्र कैसे कर सकते हैं दोस्तों। इसीलिए मसाइल को खत्म कीजिएगा। हम अपने घरों में जो मसाइल पाते हैं ना, उसे बढ़ावा देने की जरूरत नहीं, उसे खत्म कीजिएगा। और खत्म के लिए कल की सुबह का इंतजार मत कीजिएगा, आज की शाम आने से पहले अभी मसले को खत्म कीजिएगा, तभी घर में दीनदारी आएगी। वरना एक मसले को आपने खत्म ना किया, एक दूसरा मसला वहां पर जन्म लेगा, तो नतीजतन घर का माहौल ऐसा होगा कि मसाइल का अंबार होगा। और कई अल्लाह के बंदे ऐसे हैं, घर में सुकून तलाश करना चाहिए, लेकिन जब घर में दाखिल होते हैं ना, उन्हें ऐसा लगता है ना औज़ुबिल्लाह, गोया के घर में जहन्नम की आग भड़क रही है, ऐसा महसूस करते हैं दोस्तों। नहीं, इस मामले में मैं अल्लाह की बंदियों, मेरी मां और बहनों से एक अदबन गुजारिश करता हूं कि घर की मलिका हैं आप, घर की जीनत हैं आप, घर आपसे जो है लोग पहचानते हैं। घर के माहौल को बदलने में और उसको सुधारने में और उसके अंदर खराबियों को दूर करने में अल्लाह की बंदियों आपका बड़ा किरदार होता है, आपका बड़ा रोल होता है।
اللہ کی بندیوں سے, میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کیجئے گا. جہاں نفرتیں ہیں ان نفرتوں کا مقابلہ محبتوں سے کیا کیجئے گا. جہاں پر دوریاں ہیں, فاصلے ہیں, ان فاصلوں کو مٹائیے گا. اور جب گھر کے مرد حضرات گھر میں داخل ہوتے ہیں, کچھ ماحول ایسا ہو گھر کا, اللہ کے نبی نے جو سکون پایا نا, وہی جو آپ پر نازل ہوئی پہلی بار. سب اچھی طرح سے اس واقعے کو جانتے ہیں, گھبرائے ہوئے تھے. اللہ کے نبی کا حال کیا تھا, خود اللہ کے نبی کی زبانی ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کی جان چلی جائے گی. اس کیفیت میں جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں, گھر میں آپ نے سکون کو پایا, گھر میں آپ نے تسلی کو پایا, گھر میں آپ نے نعمت کو پایا. یہ گھر نعمت کی جگہ ہے, یہ گھر تسلی کی جگہ ہے, یہ گھر پرسکون ہے جہاں انسان کو سکون ملنا چاہیے. لیکن یاد رکھیے گا اللہ کی بندیوں, اگر آپ نے یہ کردار ادا نہ کیا مائے ختیجہ کا, تو ہمارے مرد حضرات گھر کو سکون کا گہوارہ پا نہیں سکتے. جب وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے ہوئے, گویا کہ آپ نے فرمایا اے ختیجہ مجھ پہ چادر اڑا دو, ایسا لگتا ہے میری جان چلی جائے گی. مائے ختیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ نہیں پوچھا اے اللہ کے نبی کیا مسئلہ ہے, کیا پرابلم ہے, کیا پریشانی, یہ نہیں پوچھا. نیک خاتون کی یہ پہچان ہوتی ہے. کبھی باہر کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, بزنس کے ٹینشن ہوتے ہیں, کاروبار کی جو ہے پریشانیاں ہوتی ہیں, اور باہر کی زندگی میں بہت ساری الجھنیں ہوتی ہیں. ان الجھنوں کے ساتھ جب مرد حضرات گھر میں داخل ہونا, سچویشن کو سمجھیے آپ, حالت کو سمجھیے آپ, بالفور آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. اگر وہ بتانے کے موڈ میں نہ ہو اور بتانے کا جو ہے مرحلہ نہ ہو, آپ ان پہ وار کرنے کی ضرورت نہیں. ہمیشہ یہی معاملہ ہے, جب بھی میں پوچھتی ہوں آپ کچھ نہیں بتاتے, ایسا آپ کو برسنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کے شوہر کے دل کو تسلی پہنچانے کا وقت ہے. آپ پہلے کچھ ایسے الفاظ کہیے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, نیک خاتون کسے کہتے ہیں, اذا نظر الیہا سرتہ, جب شوہر بیوی کو دیکھے نا, بیوی اپنی ادا سے شوہر کو خوش کر دے. اللہ اکبر. یہ نیک بیوی کی پہچان ہوتی ہے, ایک نیک عورت کی پہچان یہ ہوتی ہے, اپنی ادا سے شوہر کو خوش کرتی ہے اور اپنی ادا سے گھر کے بگڑے ہوئے ماحول کو بنانے کا ہنر رکھتی ہے. تو لہٰذا میں عورتوں سے گزارش کرتا ہوں, آپ یہ کردار ادا کر سکتی ہیں. اور خاص کر اس موقع پر میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے گھروں میں کچھ معاملات بہت بگڑے ہوئے ہیں, اور یہ بگڑے ہوئے معاملات آپ جانتے ہیں, ساس اور بہو کا مسئلہ بہت سارے گھروں میں حل نہیں ہو پاتا ہے. میں ساس کے مقام پر جو فائز خواتین ہیں ان سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں, گھر کا ماحول اگر بگڑ رہا ہے یہ آپ کی بیجا سختی کی وجہ سے, اور اسی طرح سے بہو کے مقام پہ جو عورتیں فائز ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں, اگر گھر کے نظام میں کچھ جو بگاڑ آ رہا ہے تو آپ اپنے فریضے کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. آپ شوہر کی عزت کیجئے, شوہر کے رشتہ داروں کی قدر کیجئے, اور ساس سے ہماری گزارش یہ ہے وہ بہو کی قدر کرنے والے بن جائیں کہ وہ بھی اللہ کی ایک بندی ہے, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی اپنے اندر ہمدردی رکھتی ہے, وہ بھی انسانیت رکھتی ہے. اگر یہ سب جو ہے سمجھنے والے ہم بن جائیں نا, اللہ کی قسم گھر کا ہر پرابلم ہمارا سوالو ہو جائے گا, گھر کا ہر مسئلہ ہمارا جو ہے ختم ہو جائے گا. تو اس کے لیے میں مرد حضرات سے گزارش کرتا ہوں, عورتوں سے بھی گزارش کرتا ہوں, سیریل سے دور رہنے کی کوشش کیجئے گا. آج اس سیریل نے گھر کے نظام کو تباہ و برباد کر دیا. آج اس سیریل نے ہمارے گھریلو زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. بلکہ قرآن کے گھر کا ماحول کچھ ایسا ہو وہاں قرآن کی آواز گونجنے لگے. صحابہ کے گھر کیسے تھے, صحابہ کے گھر کیسے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ بیان فرماتے, حضرت ابو موسیٰ الاشعری عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ جو قرآن کو بہترین انداز میں پڑھتے تھے, جب اللہ کے نبی ان کے گھر پر سے گزرتے نا, اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی, اللہ کے نبی تھوڑی دیر ٹھہر جاتے اور اپنے کانوں کو اس جو ہے تلاوت قرآن کے حوالے کر دیتے اور سکون حاصل کر کے اس کے بعد آگے بڑھتے تھے. اللہ اکبر. تو گھر کا ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ بڑے احباب پہلے قرآن پڑھنے والے بن جائیں, خود بخود بچے صرف کاپی کرنا جانتے ہیں, بچے بھی قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے. اور مرد حضرات سے ایک اور اہم گزارش یہ ہے کہ
نمازیں آپ سنت کی گھروں میں ادا کرنے کی کوشش کیجیے. جیسا کہ آپ مشہور مسئلہ جانتے ہیں کہ فرض نمازیں مرد حضرات مساجد میں ادا کریں گے اور جہاں تک سنت نمازوں کا تعلق ہے وہ گھر میں ادا کرنا افضل ہے. کبھی موقع نہ ملے تو آپ مسجد ہی میں ادا کر کے چلے جائیں, لیکن کوشش کیجیے گا اگلی اور پچھلی سنتیں آپ گھر میں ادا کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا گھر والوں کو اپنے عمل سے دعوت دے رہے ہیں, نماز کا وقت ہے نماز پڑھ لیا کرو. تو گویا کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا نا, لا تجعلوا بیوتکم مقابرا, اے اللہ کے بندو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. نہ قبرستان میں نماز پڑھی جاتی ہے اور نہ قبرستان میں تلاوت قرآن کا اہتمام ہوتا ہے, تو لہٰذا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اور اللہ کے نبی نے فرمایا فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ, اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہو. گھر میں اگر پریشانی ہے, الجھنیں ہیں, مسائل ہیں, سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو. سورہ بقرہ کی تلاوت سے گھر میں برکتیں نازل ہوں گی. اور آخری پیغام یہ ہے دوستو, آخری پیغام یہ ہے, غور سے سنیے گا. گھر کے ماحول کو ہم سدھارنا چاہتے ہیں, اللہ سے دعا کیجئے گا. جہاں ظاہری اسباب آپ اختیار کرتے ہیں, جہاں آپ محنت کرتے ہیں اور ہر دن فکر کرتے ہیں آپ, وہیں پر اللہ سے بھی دعا کیجئے گا. یہ نبی ابراہیم کی سنت ہے علیہ السلام. قرآن پڑھ کے دیکھیے آپ نے کتنی پیاری دعا فرمائی اللہ سے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو, میرے گھر والوں کو نماز کا پابند بنا دے. ایک اور مقام پر وجنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی پرستش سے بچا لے, عقیدے کے بگاڑ سے بچا لے. تو اس طرح کی دعائیں کیجئے گا. اگر آپ کا بچہ نافرمان ہے نا, باپ کی دعا بچے کے حق میں رنگ لاتی ہے. دعا کیجئے آپ اللہ سے, اے اللہ میرا بچہ میری بات نہیں مان رہا ہے, اس کے دل کو میرے لیے کھول دے اور میری بات اس کے دل میں داخل کر دے. میرے بچے کو فرما بردار بنا دے, میری اہلیہ کو فرما بردار بنا دے. اور ماں باپ اپنے بچوں کے حق میں اگر اس طرح کی دعائیں کریں گے نا, اللہ کی قسم گھر کا ماحول ضرور بدلے گا دوستو. اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ گھر ایک سکون کا گہوارہ بن جائے. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی گھر میں جو کچھ الجھنے ہیں, پریشانیاں ہیں, اللہ تعالی ان ساری پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے. پرسکون زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آج گھر میں جو بے برکتی نظر آتی ہے, جو ہماری غلطیوں اور سیاہ کاریوں کا نتیجہ ہے, اللہ تعالی ان بے برکتیوں کا خاتمہ فرمائے. برکتیں اللہ ہمارے گھر میں نازل فرمائے, سکون اللہ ہمارے گھر میں نازل فرمائے. اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے. جو بے گھر ہیں اللہ انہیں گھر کی نعمت سے مالا مال فرمائے. جن کو اللہ نے گھر کی نعمت سے مالا مال کیا ہے اس کی حفاظت کرنے اور قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ نظر بد سے بچائے, اللہ ہم سب کو نظر بد سے بچائے. صحت والی, ایمان والی اور سکون والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تقوی واللہیت والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی کے اس سفر کو آگے بڑھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم.